Hi friends, I hope you all are done with the basic diagrams and the structural aspects of microorganisms. Just to recap with microorganisms, the organisms what we had seen in previous class were first class of microorganism was bacteria, then after the bacteria second class was protozoans, then we had seen fungi, algae, and the last और थोड़ा सा notorious नालायक कौन virus. We had seen properties of each microorganism, especially viruses. Viruses are active within the body of the organism, rather they are being active within the host itself. होस्ट के बाहर गए तो उनको कुछ भी नहीं कर सकते वो. So the group of microorganisms, if you recall some of the examples of bacteria, algae, viruses. So example for bacteria: Escherichia coli, Streptococcus, Pseudomonas, and you can give a n number of example because there is a kingdom of a bacteria which we call it as an monerans. You'll see in next year. Then we have a movement showing microorganism, protozoans. Peculiarity of protozoans, they are showing water habitat and पानी में वो घूमते रहते हैं. कौन? Protozoans. Fungi, डेड एंड डिकेइंग, जो सड़ेला है, जो बास मारेला है, जो पड़ेला है, जिसपे एकदम ऐसा पानी वानी छूटा गंदा गंदा अच्छा है, वहां पे समझ लेगा फंगाई का पार्टी चल रहा है. Algae, green, whenever you can see water, either surface or the bottom of water to be green, समझने का algae है. Viruses you cannot see, but you have to face the problem regarding the viruses. After the structure, today let us see some of the usefulness of the microorganisms. So in what aspects, in what areas these microorganisms are more useful to you? So सबसे पहले घर से शुरू करते हैं हम लोग. इन हाउसहोल्ड यूज the microorganisms where they are being utilized, and the first household use we start with making या converting milk into the curd, and this conversion will be done by a bacteria known as lactobacillus. Here bacillus refers to shape, a rod shape. Alright, and lacto refers to a product. That product is known as lactose, rather a compound called as lactose converts into lactic acid. So here milk contains a sugar known as lactose converted into lactic acid. किसी ने आपको पूछा लैक्टिक एसिड खाते तो बोलने का रोज खाता हो क्या? दही. तो हियर लैक्टिक एसिड. rather the change in the taste, we say acids are कैसे टेस्ट में होते हैं? bitter or sour. आप देखिए. so here lactic acid will be formed. आपने शायद से घर पे देखा भी रहेगा, मम्मी थोड़ा सा दूध बुलबुला या थोड़ा गर्म करती है तो उसमें थोड़ा सा पुराना दही डालती है. वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से ग्रो करे. इसलिए हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पार्टी करना है, अच्छा सा रहना है, कैसा रह सकते हो. उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान. रोटी चाहिए मतलब बैक्टीरिया नीड खाना, बैक्टीरिया नीड वाटर एंड टेम्परेचर. सो if we provide proper temperature, what we can get is a product to be formed. तो मम्मा क्या करती है? एक अगर वो कंटेनर लेती है जिसमें मिल्क इज बीइंग देयर, शी एड अ स्पून, टीस्पून और एक या दो चम्मच क्या करती है वो? शी एड अ कर्ड. पहले वाला कर्ड है. सो दिस कर्ड विल नाउ एक्ट एज इनोक्यूलेंट.
सी these are the word from microbiology. इनोकुलेंट अभी हम घर पे मम्मा बहुत देर से यूज कर रही है बेटा, आज आपको पता चला ये क्या कि जो भी कुछ हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं टू मेक अ फ्रेश वन, दैट इज इनोकुलेंट. मतलब आप दही बनाने के लिए दूध में दही ऐड करते हैं थोड़ा सा, दैट इज इनोकुलेंट. सो हियर लैक्टोबैसिलस के लिए हमने देखा है. थोड़ा सा घर ही घर में वापस से हम देखते हैं तो हाउस यूज में के बाद हाउस यूज में हम मिल्क का कन्वर्जन किया. नाउ घर ही घर में वी जस्ट वांट टू प्रिपेयर इडली, वेयर दैट बैटर जो है इट इज बीइंग, अभी नाउ आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड बैटर इज बीइंग फर्मेंटेड. एक्चुअली टू फर्मेंट ग्रीक वर्ड है, फर्मेंट इज टू बॉइल. ट्राई टू रिमेंबर दिस, हाउ दिस हैपन. एक्चुअली इडली बनाते टाइम पे उसका बैटर बॉइल नहीं करते, बट व्हाई वर्ड इज बीइंग यूज्ड लाइक दिस. तो यहाँ पे इडली का जो भी कंटेंट्स है, दिस कंटेंट्स आर केप्ट, वी यूज द वर्ड डो. तो ये जो डो है वी कीप इट ओवरनाइट, और ओवरनाइट जब रखते हैं तो वहां पे बैक्टीरियाज दे ग्रो एंड दे स्टार्ट फर्मेंटिंग दिस वन. सो हियर व्हेन वी से दिस मेकिंग इडली, ये जो डो बनता है ये डो में बैक्टीरिया विल ग्रो, बट दीज बैक्टीरिया दे ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो these bacteria we are going to call it as anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria. And these anaerobic bacteria, when they perform their activities, they release, ये बैक्टीरिया में क्या रिलीज करेंगे? रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो उनका बाय प्रोडक्ट है. अपना काम हो गया तो कुछ तो भी छोड़ना है तो छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव ऑन द सरफेस, और जैसे ही वो बैटर में से ये सरफेस पे आता है वी सी सम फॉर्म्स ऑफ बबल्स कमिंग अप, जैसा बॉइलिंग के टाइम पे होता है. तो हमें लगता है कि ये पूरा के पूरा बैटर बॉईल हो रहा है. नो, इट इज नॉट बॉइलिंग, बट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग टू द सरफेस विच इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस. एंड ये पूरा प्रोसेस हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू फर्मेंट. तो इडली बनाते टाइम पे जब जितना ज्यादा फर्मेंटेशन होगा उतना ज्यादा इसका टेस्ट खट्टा लगता है. हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन लाइक एन लैक्टिक एसिड, एसिडिक बन जाता है. ऑलराइट, सो हियर अनदर यूज हमने देखा कि इडली, अभी ईच एंड एवरी प्रोसेस हम बेस से समझने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, आपको एग्जाम में क्या लिखना है? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली. So from making the dough of a batter of the idli. Now next use we'll see regarding is household use में. अगर हम household use छोड़ के थोड़ा बाहर आएंगे, बट डे टू डे प्रोडक्ट्स हमारे लिए जो चाहिए दैट इज ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स. बराबर है नहीं? दूध पहले, दूध बाद में मांगते हैं हम लोग, पहले बिस्किट बोलते हैं मम्मा आज क्या बिस्किट है, आज ब्रेड है क्या, आज पाव है क्या, बटर है क्या. सो दैट वी आस्क, वो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं. एंड इन दिस प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स यू नीड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ईस्ट. ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेल्युलर फंगस है. शायद से आपने बेकिंग पाउडर नाम पढ़ा रहेगा. बेकिंग पाउडर, मम्मी जब बर्थडे के लिए घर पे केक बनाती है, जमा तो केक नहीं तो वो मस्त एकदम जाड़ा गाढ़ा हो जाता है जिसको हम खाते नहीं है वैसा. तो ये बेकरी में जो ईस्ट फंगस यूज करते हैं उसका नाम है, देखो साइंटिफिक नेम कैसा है उसको, सैक्कारो. सैक्कारोमाइसीज, सी. अजीब है ना, बट क्या है, झेलना पड़ेगा. सो दिस इज साइंटिफिक नेम. जैसे अपना स्कूल में नाम अलग रहता है, गली में अलग बोलते हैं, मम्मा अलग बोलते, पापा अलग बोलते हैं, बराबर कि नहीं? वैसा मनु, मनी, बेबी, ब्यूटी, डॉल, क्या जो भी रहेगा वो अभी याद रखो ये. सो बेकरी प्रोडक्ट में ईस्ट यूज होगा, तो ऑल इन मेकिंग ब्रेड, बिस्किट्स, टोस्ट. सो ये सारी जगह पे दिस सैक्कारोमाइसिस सर्विसी इज बीइंग यूज्ड. तो व्हाट वी स्टार्टेड विथ यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये सारा यूजफुलनेस में हमने एक चीज पक्का देखा है कि
हाउसहोल्ड वर्क में दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड ऑल द टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट आर फूड प्रोडक्ट्स में. नाउ इफ यू सी बेकरी के बाद में डेयरी इंडस्ट्रीज की, ये सिर्फ आपने हाउस होल्ड देखा, बट इफ यू गो टू द डेयरी इंडस्ट्रीज में राइट फ्रॉम कर्ड, डेयरी बोले तो आपको सबसे पहले क्या याद आएगा? कर्ड बाद में याद आता है. सबसे पहले आपको पनीर याद आएगा, सबसे पहले आपको चीज याद आएगा, फिर वो ऑल टाइप्स ऑफ मोसरेला चीज, स्प्रेड चीज, ये चीज वो चीज. अभी वो हर चीज को चीज लगा के खाते हैं आप लोग, तो वो याद आएगा. देन योगर्ट याद आएगा. ऑलराइट, सो ऑल दीज आर दी मिल्क बाय प्रोडक्ट्स, रादर डेयरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स. टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सच दिस प्रोडक्ट्स यू नीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइंड इट. सो डेयरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन है कई का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. आप याद रखो, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हर एक फैक्ट को याद रखना अनिवार्य है. तो हमने क्या देखा अभी? सो इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इन प्रोडक्शन ऑफ इडली, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड डेयरी इंडस्ट्रीज. आप लगा तो उसको नोट करके आपके ओन सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अनदर यूज बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसका फायदा आपके लिए नहीं है क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डू सो, बट बाकी लोगों के लिए. अनदर यूजफुलनेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इट इज इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस. अल्कोहलिक बेवरेजेस. नाउ शॉर्टकट में अल्कोहलिक बेवरेजेस की जगह हम वर्ड यूज करेंगे दारू बनाने के लिए, जल्दी याद आता है. सो इन प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्कोहलिक बेवरेजेस, और दारू बनाने के लिए दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी मच यूजफुल. एंड अगेन क्लासिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इज ईस्ट. बहुत फायदे वाला है. हम बोलते हैं फंगस हमारे लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है, बट ये भैया है, ये बहुत अच्छा है. और दूसरा एक फंगस हम यूज करते हैं, इट इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट फंगस, जो हम बहुत बार खाते हैं, वो है मशरूम. आप मशरूम की जगह शॉप में जाके उसको बोलना है थोड़ा फंगस दे दो करके, वो चक्कर आ जाएगा उसको और आप भी खाने को मन नहीं करेगा. बट व्हेन यू से मशरूम, यम्मी, यस. तो हियर अल्कोहलिक बेवरेजेस है. जनरली शुगर, दैट इज शुगर का मोलाइसिस. मोलाइसिस इज द बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज. जनरली वी कॉल इट एज मोलाइसिस, ब्लैक शुगर और मड़ी वी कॉल इट एज. तो ये आपको देखने को जाने की जरूरत नहीं है. जब भी आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते करते कोई शुगर फैक्ट्री है, उसके बाजू से जब आप जाते तो आपको एक टिपिकल जबरदस्त स्मेल आती है. देखो, आपको मन करता है कि वहां पे रुके, वहां पे मस्त ऐसा स्मेल वेल ले नहीं ना, बहुत गंदा आता है ना. आप वो गाड़ी वाड़ी बंद करके, नाक बंद करके चलते, वही वो स्मेल किससे आता है, डेवलप होता है? तो ये शुगर मोलाइसिस से. दैट मोलाइसिस बाय यूजिंग ईस्ट वी कन्वर्ट इट इनटू अ अल्कोहल. मींस उसका हम क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं. दिस अल्कोहल के फिर बाय प्रोडक्ट्स है. एक बार अल्कोहल बन गया, फिर वो अल्कोहल से आप क्या क्या बना सकते हैं? यस, बियर बनाएंगे और वाइन बनाएंगे और विस्की बनाएंगे और बस हो गया. जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा नाम पता करो. दूसरा, नॉट ओनली शुगर, सम सीरियल्स से भी दारू बनाते हैं. मिलेट्स, बाजरी है ना, तो वो सीरियल से भी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड. नाउ फ्रूट्स है, फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करो. एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अल्टीमेट कन्वर्जन इज अल्कोहल. सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो सीरियल्स है, शुगर है, फ्रूट जूस है, ऑलराइट, डायरेक्ट फ्रूट जूस से आप बना सकते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस. सो ये अनदर यूज हो गया. सो हाउस होल्ड से थोड़ा हम लोग कहाँ पे आ गए थे? अभी थोड़ा बेवरेजेस के पास में आ गए थे. अभी खा खा के अगर बहुत बीमार पड़ते हैं हम लोग, तो वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना पड़ता है. एंड दिस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट आर नोन एज
एंटीबायोटिक्स। हम लोग ये टॉपिक सीख रहे हैं, ये नॉलेज के साथ साथ एक एटीट्यूड जनरेट करेगा, ये वे में आप अगर सीखेंगे तो। और ये वी आर जस्ट डिस्कसिंग, कंसिडर करो ये बायलैटरल हो रहा है लेक्चर, तो आप भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देंगे तो इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो हियर एंटीबायोटिक्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। अब बायोलॉजी का कोई भी वर्ड यूज करो, वो वर्ड को जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको मीनिंग आता है। माइक्रो, वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग। हियर हमने वापस से यूज किया था वर्ड कहां पे, फर्मेंटेशन, फर्मेंट, टू बॉइल। ईच वर्ड गेट्स इट्स ओन मीनिंग। यहां पे एंटी इज अपोजिट, बायोटिक इज लिविंग, मीन्स ऐसा सब्सटेंस दैट इज अपोजिट टू लिविंग, मीन्स आई कैन से दैट किल्स microorganisms within our body. So we call it as an क्या, antibiotics. So antibiotic is a substance that kills or inhibit the growth of microorganism. आपको बहुत कुछ मस्ती करने के पापा आ गए, आपका मस्ती इनहिबिट हो गया, एंटीबायोटिक है। बट डोंट से पापा एज एंटीबायोटिक, क्या वर्ड यूज करें यहाँ पे, एंटीबायोटिक इज द सब्सटेंस दैट किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ एंटीबायोटिक्स। जनरली दिस एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, सब्सटेंस मतलब वो केमिकल ही है। ये केमिकल वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैक्टीरियाज, ये हम बैक्टीरिया से निकालते हैं। जो आप दवाई खाते हैं ना, एंटीबायोटिक, डॉक्टर समटाइम्स सेज यू हैव टू टेक 7 days 5 days कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये क्या करेंगे आपके यहाँ पे, दे विल किल दिस एंटीबायोटिक्स। तो इसका स्टोरी इंटरेस्टिंग है, हाउ दिस एंटीबायोटिक्स वर बीन इन्वेंटेड। गो बैक टू 1929, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, he has invented antibiotics. He was studying on a fungus known as a Penicillium notatum. अभी फंगस को स्टडी करने के लिए कल्चर करना पड़ता है। कल्चर में मतलब वो फंगस को उनके घर पे ग्रो करना पड़ता है। जैसा हमारा घर है वैसा ये फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है। इनको हम बोलते हैं कल्चर डिश। ग्लास प्लेट्स, ग्लास डिश होते हैं, कल्चर डिश, और इट इज ऑल्सो नोन एज पेट्री डिश। See, this is for knowledge purpose. कोई भी NTSC हो, MTSC हो, any होमी बाबा एग्जाम्पल हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे यू हैव अ मीडियम, आप उस पे क्या रहता है, ये मीडियम रहेगा। मीडियम इन द सेंस ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। आपके घर पे भी मीडियम होता है। ब्रेड के ऊपर अगर फंगस ग्रो करता है तो ब्रेड इज अ मीडियम फूड, द वन विच प्रोवाइड फूड इज अ मीडियम। नाउ यहाँ पे कल्चर है किसमें, पेट्री डिश में। ऑलराइट, नाउ वो पेट्री डिश के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी फंगस, मे बी बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स, व्हाट यू कैन से। सो यहाँ पे फंगस भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी ग्रो कर रहे हैं। ये नॉर्मली हुआ था किसके साथ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ। सो बट सरप्राइजिंगली ही ऑब्जर्व्ड अ प्लेट विच कंटेन्स एंड fungus known as Penicillium notatum। ये अजीब नाम है ना, बट याद रखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है। जैसे हमारा नाम अगर बैक्टीरियल, ये फंगस हमारा नाम लेंगे तो उनको हमारे नाम अजीब लगेंगे, उनके लिए यूज टू। सो पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगस था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व जो प्लेट में पेनिसिलियम नोटाटम है वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ही नहीं है। मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दोनों ग्रो कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे वो पेनिसिलियम नोटाटम फंगस नहीं रहेगा, बट दूसरा फंगस, दूसरा बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर रहेंगे। बट ड्यूरिंग हिज कल्चर स्टडीज व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दैट प्लेट ऑन विच पेनिसिलियम नोटाटम वाज ग्रोइंग फंगस, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे नहीं। देन by several experiments he extracted a chemical and named it, उसको नाम दिया पेनिसिलियम, bacteria killing agent, and this
was the invention of first antibiotic done, yeah, rather invented by whom? Alexander Fleming. Now once Alexander Fleming invented this antibiotic known as penicillin, it was very potent antibiotic. Potent in the sense यहाँ पे word use करेंगे, it is a potent antibiotic, means highly active. And this antibiotic, which is highly active, was drug of choice in World War II. Got a Nobel Prize for that also, for saving number of lives. So this was a basic story of इसका antibiotics का. So two uses we had seen here, usefulness for with respect to the antibiotics. Now यही पेनिसिलिन के आगे जाके कुछ डेरिवेटिव्स आए. डेरिवेटिव इन द सेंस उससे ही आगे डेवलप किए. जैसे मिल्क के डेरिवेटिव्स क्या है? सारे बेकरी प्रोडक्ट्स है. वैसे वी हैव डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स यू कैन राइट रादर दूसरे एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन से हमने डिराइव किए हैं, दे आर एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, देन सेफोटैक्सिम, सेफोटैक्सिम, सेफोटैक्सिम के बाद में डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन. एक तो साइक्लिन आएगा NE या CIN आएगा. CIN इज टू किल. स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैसा नियोमाइसिन. तो यहां पे नॉरफ्लॉक्सीसिन, सीन इज टू किल, means antibiotic that kills microorganisms. So these are some of the derivatives of penicillin. जैसा पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, रादर इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग है, वैसा we have another drug or another life saving substance which we call it as what? Yes, vaccines. Now how these vaccines are being prepared and how these vaccines are being used. You people are well versed with the word vaccine. Now let us demarcate two words, vaccination and immunization. Vaccination and immunization. The administration of a drug into the body. ड्रग, दवाई किस में ऐड कर रहे हैं आप लोग? बॉडी में डाल रहे हैं. दैट इज वैक्सीनेशन. एंड बॉडी में फाइटिंग एबिलिटी डेवलप होना इज इम्यूनाइजेशन. मीन्स इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना. बट ये दोनों वर्ड को जाने से पहले लेट अस स्टडी द प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन. फिर हम डिस्कवरी देखेंगे. ह्यूमन बॉडी में we have a defense system. That defense system is known as a immune system. So हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, सोल्जर सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम. ये इम्यून सिस्टम का देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अ मेमोरी. मीन्स अगर एक बैक्टीरिया, एक वायरस बॉडी में आएगा और बॉडी को कुछ हार्म कॉज करता है तो इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड. वो वायरस को वो किल करते हैं, रादर वो स्ट्रक्चर को वो किल करते हैं. बट प्रोवाइडेड दैट वायरस और दैट स्ट्रक्चर शुड बी लेस हार्मफुल. ज्यादा हार्मफुल रहेगा तो हम ऊपर चले जाते हैं, कोरोना. सो हियर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर लेस पोटेंट है तो हमारा बॉडी फाइट अगेंस्ट दैट वैक्सीन, सॉरी दैट वायरस. एंड ये जो पूरा फाइटिंग इट विल बी मेमोराइज्ड. शूटिंग करके लेते हैं कौन? इम्यून सिस्टम. तो इट विल बी मेमोराइज्ड सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन such a virus enter into body can be fighted. याद रखने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स आपको बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं और वैक्सीन जो है वो वायरस के लिए. वी याद रखो. आपको बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है. सो डिफेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज मेमोरी. ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब फाइटिंग का रिस्पॉन्स, इज मेमोराइज्ड.
so that next time you won't get the infection one more time. दिस प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं एंड एक्चुअली वैक्सीन को देना मतलब वी आर फुलिंग आवर इम्यून सिस्टम. हम अपने इम्यून सिस्टम को येड़ा बना रहे हैं. कैसे देखो आप क्या करते हैं? व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन इज डेड, मरा हुआ और एटीन्यूएटेड. एटीन्यूएटेड मतलब हाफ किल्ड. हाफ किल्ड मतलब वायरस जिंदा है, टाइगर जिंदा है नहीं, कौन? वायरस जिंदा है, बट इट कैन नॉट कॉज द डिजीज. मतलब उसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी निकाल दिया है. सोल्जर है, उसके पास वेपन्स नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना. बात समझ में आई ना? सो हियर वैक्सीन इज अ डेड और attenuated virus that is prepared within the laboratory. It is a long process of making vaccine. But एक बार वो वैक्सीन मिल बन गया तो this vaccine is then administered. ये इंजेक्शन समझो 2 मिनट के लिए. This vaccine is being administered. किसमें? ह्यूमन में. बराबर है. तो एक ह्यूमन में क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करते हैं? इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं. कुछ वैक्सीन इंजेक्शन से लगाते हैं, कुछ वैक्सीन ओरल वैक्सीन होते हैं, मतलब 2 बूंद क्या के जिंदगी के. कौन सा? पोलियो. यस, वी हैव अ नेशन वाइड प्रोग्राम डन टू इरेडिकेट. खत्म करना है, हटा देना है. किसे? पोलियो को. इसलिए यूनाइटेड नेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलके प्रोग्राम चलाया. कैसा? स्वच्छ भारत अभियान. क्या? नहीं, 2 बूंद जिंदगी के. तो 2 यहाँ पे पोलियो को इरेडिकेशन करना है. अभी पोलियो वायरस क्या करता है देखो. व्हेन पोलियो वायरस एंटर्स, वो आके आपके नर्व कॉर्ड या आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करते रहता है. और ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे इफेक्ट हो जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब आपके पैर गेट पैरालाइज्ड, वहां पे आपको नर्व सिग्नल पहुंचेंगे नहीं. एंड ये आप बोलते हैं ये बच्चे को पैरालाइज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट पैरालिसिस, क्योंकि सिर्फ बच्चों में मिलता है, तो नोन एज इन्फेंट पैरालिसिस. सी मैं आपको 2-3 पार्ट में सिखाया है. वापस एक बार अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज हो रहा है, या वैक्सीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. वैक्सीन का प्रिंसिपल इज मेमोरी ऑफ अ इम्यून सिस्टम. Each and every event that of a immune response is being memorized. This property is used by which we are administering the dead or attenuated virus. सेम वायरस मतलब पोलियो ही वायरस लेंगे, उसको मार देंगे, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर हमारा बॉडी में डालेंगे, तो बॉडी को क्या लगेगा? अरे यार ये तो आया, तो हम फटाफट उसको मार देंगे. बराबर है. वो तो नहीं मार सकता, वो कुछ भी कॉज नहीं करेगा, बट हम मारने के बाद में और मेमोराइज करते हैं. इसलिए देखो, एक वैक्सीन को 2-3 बार देते हैं. लास्ट में कभी कभी आप बूस्टर डोज याद करते हैं. बूस्टर डोज नाम याद रखो. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो. मम्मा को पूछो, बहुत क्यूरियसली है, वो आपको बता देंगे. तो ये हमारे पास में क्या हो गए? वैक्सीन्स हो गए. बहुत सारे वी हैव वैक्सीन. BCG नाम का वैक्सीन है, बैसिलस कोमेट ग्यूरिन. वी गॉट ट्रिपल वैक्सीन. गेटिंग इट और नॉट? तो ऐसे आपने बीच में H1N1 का वैक्सीन लिया रहेगा. H1N1 इज स्वाइन फ्लू. और अभी हम नया वैक्सीन ढूंढ रहे, आप भी ढूंढ सकते हैं. किसके अगेंस्ट? कोरोना के अगेंस्ट. सो हियर वी से दीज वैक्सीन का प्रोडक्शन है एंड दीज वैक्सीन्स आर बीइंग यूज्ड. सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, दीज आर द 2 बेसिक एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस. बट अभी नाउ इसका डिस्कवरी कब हुआ? वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर. साइंटिस्ट था लेकिन बहुत काम करता था एंड बहुत होशियार था अपने जैसे. जब वो while during his observation, see, being a to be scientist you should be very good observer. You should have a very good analytical power. So when we consider this vaccine के लिए, तो this was being invented in 1798 में डिस्कवर हुआ. जो लोग काउ को रेयरिंग करते थे, so he was rearing cows and he found that
द पीपल who are continuously with these cows did not suffer from a disease known as a smallpox. Did not suffer from the disease called as smallpox. तो जैसे ही उनको पता चला कि smallpox नहीं होता है किन के लिए, कि जो काऊ के साथ साथ है, ऐसा क्यों हुआ, वो आपके लिए या आपके लिए क्या है, सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी है. उसके लिए आप और एक वर्ड यूज करेंगे, काउपॉक्स. तो व्हाट इज अ काउपॉक्स, व्हाट इज अ स्मॉल पॉक्स. तो जिसको काउपॉक्स हुआ उसको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं होता है, इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी है. वो आपके लिए एज अ क्यूरियोसिटी में छोड़ के जा रहा हूं. नाउ as today we have vaccines against TB, tuberculosis, polio, we have vaccine tetanus, diphtheria, number of vaccines are being available. आप लेते जाएंगे तो 50,000 भी कम पड़ते हैं पूरे वैक्सीन लेने को, डॉक्टर की ऐश हो जाती है. आप सोचो कितना लेना है कितना नहीं लेना है. बाकी अपना इम्यून सिस्टम पे भी कुछ तो भी काम छोड़ते जाओ आप. Now, after this, we have microorganism used to increase soil fertility. Increase soil fertility. Soil needs nitrogen. Though nitrogen is available in the atmosphere, but it is useless. तो useless को useful करना है, नालायक को अच्छा करने का काम is being brought about by these microorganisms. So this at the end of the topic we are going to see an important nitrogen cycle जो हर एग्जाम में आता है. तो उसके बाद में इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू क्लीन द एनवायरनमेंट. नो डाउट फंगस आर गुड क्लीनर्स, हम उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं. बट देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू डिग्रेड प्लास्टिक. नाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड. क्यूरियोसिटी आपके लिए कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है ना. देन कुछ there are certain microorganisms, they degrade organic chemicals, so which are harmful to the nature. Not only this, so that this in clearing environment, rather microorganisms which are used to clean the environment, this process we call it as bioremediation. process को हम बोलेंगे bioremediation. Apart from this, आपको नहीं है बट यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, विटामिन्स. आप विनेगर खाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है. आप विटामिन खाएंगे, विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन C, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके अलावा प्रोडक्शन